यूनिट 4 हंसेल एंड ग्रेटल। आज हम एक पुरानी कहानी पढ़ेंगे। दोनों बच्चे, एक जंगल और मिठाई से बना हुआ एक घर। Look at the given picture on the next page. What do you think the story is about? अगली सफ़े की तस्वीर देखो। तुम्हारे ख्याल में ये कहानी किसके बारे में है? थोड़ा सोचने के लिए वक्त लो। Once upon a time, two children named Hansel and Gretel lived near a forest with their Aunt Mary and Uncle Harry. एक दफा का जिक्र है, दोनों बच्चे हंसेल और ग्रेटल अपने चचा हैरी और चची मेरी के साथ जंगल के पास रहते थे। Their parents had died a few years ago in an accident. उनके वालिदैन कुछ साल पहले एक हादसे में इंतकाल कर गए थे। Their uncle and aunt were very poor but tried their best to look after the children. चचा और चची बहुत गरीब थे, मगर बच्चों को पालने की पूरी कोशिश करते थे। One night, Hansel heard his uncle telling his wife. एक रात हंसेल ने अपने चचा को चची से बात करते सुना। I have tried very hard but now there is no money left and no food to eat. मैंने बहुत कोशिश की, मगर अब ना पैसे बचे हैं और ना खाने को कुछ है। We can no longer look after our niece and nephew. हम अब अपनी भतीजी और भतीजे को नहीं पाल सकते। Tomorrow I will take them to the forest and leave them there. Maybe they can survive on berries. कल मैं उनको जंगल ले जाऊंगा और वहीं छोड़ आऊंगा। शायद वो बेरीज खाकर जिंदा रह ले। हंसेल was very scared. हंसेल बहुत डर गया। Suddenly, he had an idea. अचानक उसके जहन में एक तरकीब आई। He went outside and gathered small pebbles and put them in his pocket. वो बाहर गया, छोटे चिकने पत्थर जमा किए और अपनी जेब में डाल लिए। The next day, they went to the forest with their uncle and Hansel kept dropping the pebbles to guide them home. अगले दिन वो चचा के साथ जंगल गए और हंसेल रास्ते में पत्थर गिराता गया ताकि घर का रास्ता याद रहे। The uncle left the children and quietly slipped away, but the children managed to return by looking at the trail of stones. चचा बच्चों को छोड़कर चुपके से चले गए, मगर बच्चे पत्थरों के निशान देखकर वापस घर आ गए। Their uncle and aunt were feeling guilty and were glad to see them. चचा और चची शर्मिंदा थे और उनको देखकर बहुत खुश हुए। A few weeks passed but things did not get better. कुछ हफ्ते गुजरे, लेकिन हालात बेहतर नहीं हुए। Where is the story set? सोचो, ये कहानी कहाँ हो रही है? जगह का नाम कहानी ही में लिखा है। जवाब देने से पहले सोचो। The story says, lived near a forest with their Aunt Mary and Uncle Harry. कहानी की पहली लाइन कहती है, वो जंगल के पास रहते थे। Near a forest. ये कहानी जंगल के पास हो रही है, उस घर में और उस जंगल में। How could have Uncle Harry and Aunt Mary avoided sending the children to the forest? अब ये सोचो, चचा हैरी और चची मेरी बच्चों को जंगल भेजने से कैसे बच सकते थे? The story says, there is no money left and no food to eat. कहानी कहती है, ना पैसे बच्चे थे, ना खाने को कुछ। यानी असल मुश्किल पैसे और खाने की थी। They could have asked for help. वो अपने पड़ोसियों से मदद मांग सकते थे।
या काम ढूंढ कर पैसे कमा सकते थे। बच्चों को जंगल में छोड़ने की जरूरत नहीं थी। Aunt Mary tried to manage with the little food they had but told her husband that it was now impossible to care for the two children. चची मेरी थोड़े से खाने में गुजारा करती रही, मगर फिर शौहर से कहा कि अब दोनों बच्चों को पालना नामुमकिन है। Early in the morning, Uncle Harry took the children for a walk again. सुबह सुबह चचा हैरी बच्चों को फिर से सैर पर ले गए। Hansel was suspicious but there was no time to gather pebbles. हंसेल को शक जरूर हुआ, मगर पत्थर जमा करने का वक्त नहीं था। The only thing he had was some stale bread which he took along, and he kept throwing the crumbs on the ground. उसके पास सिर्फ थोड़ी सी बासी रोटी थी, जो वो साथ ले गया, और उसका चूरा रास्ते में जमीन पर फेंकता गया। This time Uncle Harry took a different route which was not familiar at all and then left them in the forest. इस बार चचा हैरी एक बिल्कुल अनजान रास्ते से गए और बच्चों को जंगल में छोड़ आए। The children tried to find the breadcrumbs but the birds had eaten all of them. बच्चों ने रोटी का चूरा ढूंढा, मगर चिड़िया वो सारा खा चुकी थी। Round and round they went but couldn't find their way home. वो गोल गोल चक्कर काटे, मगर घर का रास्ता ना मिला। Suddenly they saw a lovely cottage. अचानक उनको एक प्यारी सी कॉटेज नजर आई। They could not believe their eyes. उनको अपनी आंखों पर यकीन न आया। It was made of chocolate, lollipops, and colorful sweets. वो घर चॉकलेट, लॉलीपॉप्स और रंगीन मिठाइयों से बना हुआ था। Standing near the door was an old lady. Welcome children, she said. दरवाजे के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने कहा, आओ बच्चों। You look very tired and hungry. Come in and rest. तुम बहुत थके और भूखे लग रहे हो, अंदर आकर आराम करो। The old lady was actually a witch who caught Hansel and put him in a cage while she made Gretel do the entire housework. वो बूढ़ी औरत असल में एक जादूगरनी थी। उसने हंसेल को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया और ग्रेटल से घर का सारा काम करवाती रही। She planned to sell Hansel and keep Gretel, but Gretel was a very clever girl. उसका इरादा था कि हंसेल को बेच दे और ग्रेटल को रख ले, मगर ग्रेटल बहुत अक्लमंद लड़की थी। One day when the witch was making soup in a huge oven, Gretel pushed her inside and closed the heavy oven door. एक दिन जब जादूगरनी एक बड़े तनूर में शोरबा बना रही थी, ग्रेटल ने उसे अंदर धकेल दिया और भारी दरवाजा बंद कर दिया। Then she opened the cage to free Hansel. फिर उसने पिंजरा खोलकर हंसेल को आजाद कर दिया। They searched the house and found a treasure chest full of gold coins. उन्होंने पूरा घर ढूंढा और उनको सोने के सिक्कों से भरा एक खजाने का संदूक मिल गया। Holding hands, they at last found their way home. एक दूसरे का हाथ थामकर आखिरकार उनको घर का रास्ता मिल गया। Uncle Harry and Aunt Mary were delighted to see them, as they felt very sorry for what they had done. चचा हैरी और चची मेरी उनको देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि उनको अपने किए पर बहुत अफसोस था। With the gold they had found, they lived happily ever after. उस सोने की मदद से वो हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। पेबल। नया लफ्ज पेबल। इसको तोड़ते हैं PEBBLE। जोर PB पर है। PE
बीक BLE। लफ्ज को साउंड के हिस्सों में तोड़कर स्पेलिंग याद करना सबसे आसान तरीका है। पेबल अ स्मॉल स्मूथ स्टोन। पेबल का मतलब है एक छोटा चिकना पत्थर जो पानी ने गोल कर दिया हो। He went outside and gathered small pebbles and put them in his pocket. वो बाहर गया, छोटे पत्थर जमा किए और जेब में डाल लिए। Crumbs। नया लफ्ज crumbs। इसको तोड़ते हैं crumbs। जोर crumbs पर है। CRUMBS। Crumbs tiny pieces of bread। क्रम्स रोटी के बहुत छोटे टुकड़े होते हैं जो खाते वक्त नीचे गिर जाते हैं। The children tried to find the bread crumbs but the birds had eaten all of them. बच्चों ने रोटी का चूरा ढूंढा मगर चिड़िया वो सारा खा चुकी थी। स्टेल। नया लफ्ज स्टेल। इसको तोड़ते हैं स्टेल। जोर स्टेल पर है। STALE। स्टेल ओल्ड एंड नो लॉन्गर फ्रेश। स्टेल का मतलब है बासी, रोटी जो ताजी नहीं रही, सख्त हो चुकी है। The only thing he had was some stale bread which he took along. उसके पास सिर्फ थोड़ी सी बासी रोटी थी जो वो साथ ले गया। कॉटेज। नया लफ्ज कॉटेज। इसको तोड़ते हैं कॉटेज। जोर कॉट पर है। COTTAGE। कॉटेज अ स्मॉल हाउस इन द कंट्रीसाइड। कॉटेज एक छोटा सा मकान होता है, अक्सर गांव या जंगल के पास। Suddenly they saw a lovely cottage. अचानक उनको एक प्यारी सी कॉटेज नजर आई। Witch। नया लफ्ज विच। इसको तोड़ते हैं विच। जोर विच पर है। WITCH। विच अ वुमन इन स्टोरीज हु यूजेस मैजिक। विच को उर्दू में जादूगरनी कहते हैं, कहानियों की वो औरत जो जादू करती है। The old lady was actually a witch who caught Hansel and put him in a cage. वो बूढ़ी औरत असल में एक जादूगरनी थी जिसने हंसेल को पिंजरे में बंद कर दिया। ट्रेजर। नया लफ्ज ट्रेजर। इसको तोड़ते हैं टियारिये शॉ। जोर टियारिये पर है। TREASURE। ट्रेजर गोल्ड, कॉइन्स एंड अदर रिचेज। ट्रेजर का मतलब है खजाना, सोना, सिक्के और कीमती चीजें। They searched the house and found a treasure chest full of gold coins. उन्होंने घर ढूंढा और सोने के सिक्कों से भरा खजाने का संदूक मिल गया। Hansel and Gretel lived near a forest with their uncle and aunt. हंसेल और ग्रेटल अपने चचा चची के साथ जंगल के पास रहते थे। Hansel dropped pebbles to find the way home, but the birds ate the breadcrumbs. हंसेल ने पत्थर गिराए ताकि घर का रास्ता मिले, मगर रोटी का चूरा चिड़िया खा गई। A witch trapped them in a cottage made of sweets. एक जादूगरनी ने उनको मिठाई वाले घर में कैद कर लिया। Clever Gretel saved her brother, and they found a chest of gold. अक्लमंद ग्रेटल ने अपने भाई को बचाया और उनको सोने का संदूक मिल गया। Keep calm and think a clever head finds the way. कहानी ये सिखाती है, मुश्किल में घबराओ मत, सोचो। अक्लमंदी ही रास्ता दिखाती है।